Good morning, students. How are you? Uh, I hope all of you will. Today we discuss about chemistry practical. Chemistry practical. There are three types of chemistry practical in any standard. First, first qualitative analysis. Second, quantitative analysis. And third, preparations of any compound. We repeat again. There are three types of chemistry practical in any standard: qualitative analysis, quantitative analysis, and preparations. Quantitative analysis, like volumetric analysis, it is also known as titrations. Qualitative analysis, like salt analysis, and test for functional group of organic compound. And preparations, preparation of any organic and inorganic compound and other complex compound. So there are three types of chemistry practical in any standard. We repeat again: qualitative analysis, quantitative analysis, and qualitative analysis, quantitative analysis, and preparation. Quantitative analysis, such as volumetric analysis or titrations. Qualitative analysis, like salt analysis or test for any functional group. Preparation of any organic and inorganic compound or any other complex compound. Or also the preparations of uh, colloidal solution and other preparations. In class 12 board examinations, these type of practicals is classified into also three types. First, volumetric analysis. It contains 8 marks in the final board examinations. Volumetric analysis or titration is contain 8 marks in the final board examinations. And second, salt analysis. It also contain 8 marks in the final board examinations. And last, content based experiment. In under content based experiment, preparations of organic compound, या preparation of colloidal solutions, or the test for functional group. These all are included under content based experiment. It have 6 marks. We repeat again: volumetric analysis 8 marks, salt analysis 8 marks, content based experiment 6 marks. Total 22 marks. Total 22 marks. इस 22 मार्क्स का रिटेन एग्जामिनेशन आपको देना होगा प्रैक्टिकल्स का एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स के प्रेजेंस में. इंटरनल इज ऑल्सो प्रेजेंट फॉर योर हेल्प.
और इस 22 मार्क्स के रिटेन एग्जामिनेशंस के अलावा 8 मार्क्स के वाइवा, क्लास रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट फाइल, ये सारे होता है. प्रोजेक्ट फाइल contain 4 marks and viva and class record is also contain 4 marks. Thus the total marks of the practical examination is 30, 22 written examinations and 8 marks viva, class record, project file. First, volumetric analysis. Volumetric analysis, it is also known as titration. There are two types of titration in the class 12 examinations. In class 12 practical examinations, finding of concentration of potassium permanganate solution by the help of a standard solution of oxalic acid. First, finding of concentration of potassium permanganate by the help of a standard solution of oxalic acid, or finding the concentration of potassium permanganate solutions by the help of a standard solution of Mohr salt. ये जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसको हम लोग टाइट्रेशंस कहते हैं, इसके अंदर में दो टाइप्स के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. फर्स्ट, finding the concentration of potassium permanganate by the help of standard solution of oxalic acid. Finding of concentration of potassium permanganate by the standard solutions of Mohr salt. बट इसमें जो चेंज होने वाली चीजें हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. As the examples, questions: find the concentration of potassium permanganate solution by the help of m/10 standard solution of oxalic acid. या इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन by the help of standard solution of Mohr salt. Having standard is m/15. तो ये दो टाइप्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टाइट्रेशन से रिलेटेड. पोटासियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना ऑक्सैलिक एसिड के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के हेल्प से, पोटासियम परमैंगनेट की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना मोहर सॉल्ट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के हेल्प से. We repeat again the pattern of volumetric analysis questions. Questions like to prepare 250 ml of standard solution of
oxalic acid of a standard M/50 and by the help of this determine the strength of given potassium permanganate solution. या ऐसे हो सकते हैं टू प्रिपेयर्ड M/10 standard solution of oxalic acid solution and by the help of this determine the strength of given potassium permanganate solution. या ऐसे पूछ सकते हैं टू प्रिपेयर्ड M/40 oxalic acid solution and by the help of this determine the strength of given potassium permanganate solution. कहने का तात्पर्य है कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन से आपसे पूछा जा सकता है. स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस के हो सकते हैं, उसकी वॉल्यूम अलग हो सकता है, बट टाइट्रेट करना है आपको पोटासियम परमैंगनेट वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड, पोटासियम परमैंगनेट वर्सेस मोहर सॉल्ट. पोटासियम परमैंगनेट की स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करना है या तो ऑक्सैलिक एसिड के हेल्प से या मोहर सॉल्ट के हेल्प से. ये आपको गिवन रहेगा कि किसके मदद से आप निकालना है, कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर करना है. तो ये सॉल्ट एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बातें होगी. नेक्स्ट सॉल्ट एनालिसिस. सॉल्ट एनालिसिस मीन्स the finding of acidic and basic radical in the given sample of the salt. सॉल्ट की सैंपल प्रेजेंट है, उसमें डिटेक्ट करके आपको बताना है कि एसिडिक रेडिकल्स क्या है, बेसिक रेडिकल्स क्या है, बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट. बेसिक रेडिकल इज क्लासिफाई इनटू मेनी ग्रुप्स. जीरो ग्रुप केटायन, ग्रुप फर्स्ट केटायन, ग्रुप सेकेंड केटायन, ग्रुप थर्ड केटायन, ग्रुप फोर्थ केटायन, ग्रुप 6 केटायन. इस तरह से ग्रुप 22 केटायन होते हैं. जैसे आप देखोगे जीरो ग्रुप केटायन NH4+, ग्रुप फर्स्ट केटायन Pb2+. ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप से थोड़ा सा डिफरेंट है. उसी तरह से एसिडिक रेडिकल्स इज ऑल्सो क्लासिफाई इनटू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप, डायलूटेड H2SO4 ग्रुप. इस तरह से उसको भी ग्रुप 22 एसिडिक रेडिकल्स को भी डिवाइड किया गया है. दैट मीन्स सॉल्ट एनालिसिस मीन्स द फाइंडिंग ऑफ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इन द गिवन सैंपल ऑफ द सॉल्ट. जो सॉल्ट की सैंपल आपको दिया हुआ है उसमें आप टेस्ट कीजिए और एसिडिक रेडिकल्स को फाइंड कीजिए, बेसिक रेडिकल्स को फाइंड कीजिए. बेसिक रेडिकल्स 4 मार्क्स का रहता है, एसिडिक रेडिकल्स भी 4 मार्क्स का रहता है. स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं. 4 मार्क्स एसिडिक रेडिकल से, 4 मार्क्स बेसिक रेडिकल से. ये टोटल 8 मार्क्स की हो गई. नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट. कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो फंक्शनल ग्रुप टेस्ट से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि प्रिपरेशन में थोड़ी वक्त लगती है. ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है जनरली चॉइस होता है कि फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए. तो फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन टेस्ट, अल्कोहलिक ग्रुप टेस्ट, फेनोलिक ग्रुप टेस्ट, कीटोनिक ग्रुप टेस्ट, एल्डिहाइडिक ग्रुप टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टेस्ट, एमीन टेस्ट, सनाइड टेस्ट. तो इन सारे फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करना. कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सैंपल आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सैंपल आपको सप्लाई कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, और उसको डिटेक्ट करना है टेस्ट के जरिए कि उसमें किस टाइप की फंक्शनल ग्रुप है. एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा. तो ये रहा आपका रिटेन एग्जामिनेशंस का एक्सप्लेनेशंस, प्रैक्टिकली रिटेन एग्जामिनेशंस. वाइवा वॉइस में जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कोशिश ये रहता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिकल से ही रहे, बट आपके थ्योरी सेक्शन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है. और प्रोजेक्ट, एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट अपने टीचर्स के अंडर में, केमिस्ट्री के टीचर्स के अंडर में कुछ दिन रह के वर्क करके एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट तैयार करना होता है.
वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे आपने ढेर सारा कोल्ड ड्रिंक्स का सैंपल ले लिया और उस कोल्ड ड्रिंक्स के सैंपल में आपने डिटेक्ट किया कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कोका कोला ले लिया, थम्सन ले लिया, स्प्राइट ले लिया, तो डिफरेंट डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स आपने ले लिया, उसमें उस डिटेक्ट कर लिया कि क्या क्या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। या फिर कोई न्यू इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, कोई न्यू चीज़ की इन्वेंशन, कोई न्यू इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है जो आपने अपने टीचर्स के अंडर में रह के वो वर्क किया है, तो वो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एक रहता है। तो ये प्रैक्टिकल्स का आपका पूरा ये रहा सिलेबस और उसकी एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। चलिए आज इतना ही।